and thanks for taking your interest in today's workshop. My name is Malik Rizwan, and I've been working in IT industry from last 14 plus or 15 years on different roles, from developer to leading a team, working as a software architect, and right now I'm working as integration manager. My current role involves huge amount of communication with different people from different backgrounds, including BAs, project managers, and senior management, clinical people, developers, you name it. So just before we jump into the topic, I'm not a professional trainer, and this workshop is no way a language class. I'm just going to share some of the tips based on my experience. We'll keep it informal. If you have any comments, input, feedback, feel free to jump into the conversation. उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिक्स करेंगे हम लोग ये. All right, so today's topic, as you all know, is about effective communication. The reason why I have chosen this topic is because throughout my career, I have jumped around on different roles. I have observed people leading roles who are driving the business or projects, or people who have the good command on communication. When I say communication, I don't really mean to have command on English or any other language specifically. I'm just in general having good communication skills. Obviously, in most of you, in your case, it would be good to have the good English language skills, because it plays a vital role, and because you are directly involved working with your clients on your day-to-day work. I used to be a developer as well, and I think a common problem with the developers is that their nature of job requires them to have a good technical skills, but that fades off a very important point, that the communication plays a vital role in your industry, but because everyone from IT industry is keeping their skills up to date, which is required for their job, but in most cases their communication is not as strong, or it's not in a professional way good. In most cases, their weak communication does not become a major problem during the initial stage of a career, but as you move on and you are heavily involved in a bigger project, or you're designing a solution along with your clients, that's when the problem occurs. What they tend to do is to ignore that moving up the ladder in your professional career, communication plays a huge role, and that's what we're going to talk today. All right, so just discuss a little bit about the problems caused by the communication, and then we move to identifying the problems, and then we address the problems later on. I'm not sure what level of your career all of you are on, but if you remember back in the old days, software lifecycle was driven from a waterfall model, and even still some companies, especially in the corporate sector, are following that. The major problem I see with the waterfall model is that once you lock the requirements and everything is done from the requirement point of view, after that, client wouldn't have any visibility on what's happening on your project until the end product would be delivered. आप जितनी देर भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे होंगे, starting from the gathering the requirements, उसके बाद जितना भी वो फेज आगे चलेगा, उसके अंदर आपकी क्लाइंट को किसी किस्म की विजिबिलिटी नहीं होती कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है. ठीक है, until you deliver that, and that's when you find out that there are a lot of things that you have missed out. Some requirements were not completely done or were not done rightly. तो उसका result क्या होता है कि आपको eventually you have to work more to meet the requirements, expectations, and meet the new deadlines. आपके ख्याल में इसका मेन प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल का? मेरे ख्याल में इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इवन दो कि इसमें इनफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट अंडरलाइंग प्रॉब्लम इसका ये है कि आपकी कम्युनिकेशन इनफ नहीं होती वाटरफॉल मॉडल में, क्योंकि आपने इनिशियली उसके साथ क्लाइंट के साथ जब बात की है, उस वक्त आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं
मे बी आप उस एट दैट टाइम यू डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ दैट डोमेन। जब आपने रिक्वायरमेंट गैदर करना शुरू किए हैं, आपको डोमेन का नहीं पता, मे बी, और मे बी यू डिडंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो होता क्या है कि एज सून एज यू स्टार्ट डेवलपिंग, उस वक्त आपके सामने बहुत सारी चीजें एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं कि क्या चीज मैंने मिस आउट कर दी है, क्या चीजें रह गई हैं, कौन सी चीजें अच्छे तरीके से की जा सकती हैं जो कि उन्होंने रिक्वायरमेंट में ठीक से नहीं बताई हुई। तो लेकिन by then you have already locked your requirements, and when you go back to the your clients to change those requirements, or you convince them to do it differently, उसका क्या होता है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है कि आपकी टाइमलाइन बढ़ जाती है। आप दोबारा से रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, फिर उसमें चेंजेस करते हैं, फिर एट द एंड जब आप उसको डिलीवर करते हैं तो क्लाइंट के पास जो एंड प्रोडक्ट जाता है, वो उस तब जाके उसको पता चलता है कि इसके अंदर हुआ क्या हुआ है। और ऑन द अदर हैंड, जब आप एजाइल मेथोडोलॉजीज को यूज करते हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड, the communication problems are resolved by that. The reason is, you have a effective communication, you have regular catch-ups and daily stand-ups, all sort of those things. So उससे क्या होता है कि आपके क्लाइंट को एक विजिबिलिटी मिल जाती है कि आपको रेगुलर बेसिस पे चल क्या रहा है। आपके पास MVPs होते हैं जो आप डिलीवर करते हैं कि लेट्स से ऑन फोर्टनाइटली 2 वीक्स के बाद अब उसको कुछ डिलीवर कर रहे हैं, तो उसको एक विजिबिलिटी रहती है कि कुछ प्रोग्रेस चल रही है, और अगर उसमें कुछ मिस आउट हो रहा है तो वो आप अर्ली स्टेजेस पे उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों। ये तो हो गया एजाइल मेथोडोलॉजीज की। इसमें a lot of processes involved होते हैं agile में, but I think in the nutshell the key here is the better communication which agile methodologies brings on. आपके पास जितना भी पूरा प्रोसेस एजाइल का चल रहा होता है, उसके नटशेल में उसके की यही है कि आप जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाती है, जो कि वाटरफॉल मॉडल में नहीं होती। तो अब इस ग्राफ को अगर आप देखें, इसमें इफ यू हैव अ पुअर और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, that is actually directly proportional with your cost. If you look at the vertical line that I've drawn there, the cost, it is actually involved. It is directly proportional with your the timeline of your what you call that one, the timeline of your project. अगर आपकी कम्युनिकेशन पुअर होगी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी टाइमलाइन बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। So all sort of those things happen during the project life cycle that you have to take care of. And बहुत सारी चीजें आपकी communication में आप 100% किसी चीज को भी perfect नहीं कर सकते, लेकिन some few of the things that you can, if you keep focus on those things, बहुत सारी चीजों को आप avoid कर सकते हैं, बहुत सारी problems को आप avoid कर सकते हैं। अगर मैं बहुत if my pace is too fast, let me know, I can slow down. All right, so the next thing is identifying the problems. And before we go into the further details, I will have just listed down some common problems that we face in our workplace. The first one on the list is different culture. By different culture, I could mean when you join a new company, that's a different culture for you from your previous company or previous organization or workplace. और दूसरी साइड पे आप जब डिफरेंट कल्चर की रिमोटली आप काम कर रहे हो, तो द कल्चर डिफरेंसेस एंड द डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड इंक्रीजेस द चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपका जो क्लाइंट है वो बाहर बैठा हुआ है, he speaks a different language, you speak a different language, English is not your first language, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक गैप बन जाता है। हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, हम नेटिव की तरह नहीं बोल सकते उसको, तो एक स्टेज पे जाके आप कहीं ना किसी तरह से एक स्टक हो जाते हैं, जिसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेन प्रॉब्लम उसकी आई थिंक पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर या बांग्लादेश में या इंडिया में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन पे। आप अगर किसी बंदे के साथ बैठ के इंग्लिश में बात कर रहे हैं और उसकी इंग्लिश आपसे बेहतर है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आप वैसे ही थोड़ा सा जो ना वो रिलक्टेंट फील करेंगे उसके सामने बोलने में, क्योंकि एक काइंड ऑफ
एक हमारी वो एक बन चुकी है, वो कल्चर बन चुका है। तो फर्स्ट thing is the different culture. I think it's very important that you need to understand the culture of your clients and your workplace, so you know what kind of processes and what kind of culture they adopt. And then I think, in my opinion, it's good to have, but it depends, and everyone has their own opinion on it. I think good communication skills के साथ एक न्यूट्रल एक्सेंट जो होता है इंग्लिश का, वो होना किसी हद तक अच्छा है मेरे ख्याल में, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना, वो एक जो गैप होता है आपकी क्लाइंट में और आप में, वो आप उसको फिल कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स के साथ साथ आपका एक्सेंट न्यूट्रल हो। न्यूट्रल इन अ सेंस के आप अमेरिकन एक्सेंट में बात ना करें, लेकिन ये है कि अपना एक्सेंट न्यूट्रल कर लें। जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की, वो आप उनको न्यूट्रल रखेंगे ताकि वो उनको इजीली समझाने में इजी हो जाए। मतलब आप कई दफ़ा इस तरह होता होगा, मेरे साथ भी होता है कि आप कोई वर्ड बोलते हैं तो आपको दो दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट करना पड़ता है क्योंकि नेटिव को वो समझ नहीं आता प्रॉपरली। So I think it makes easier for your client to understand when you talk to them, and like मेरा accent थोड़ा सा neutral है, which with some flavor of Kiwi accent, but it's more towards the Pakistani accent. Next one on the list is neglecting your audience. Again, it's really important. एक point जहाँ पे जो बहुत सारे developer जो हैं वो एक प्रॉब्लम जिन उनकी होती है, जो अंडरस्टैंड नहीं वो करते हैं, कि हम जब डेवलपर्स जब बात करते हैं अपने क्लाइंट के साथ या किसी के साथ भी, तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं। Several times a developer would use some words that are too technical for your target audience. अगर आप मैं example do, a few days ago I had a meeting with my client. There were a lot of business people sitting in the meeting room, and I had few devs joined me remotely, and we were discussing something on the dispatch system, whereby the status of the call has to be changed during the call. तो जो डेवलपर था उसने कहा जी कि हम जो कॉल का स्टेटस है वो रन टाइम पे चेंज कर देंगे। अब रन टाइम इज अ वेरी कॉमन टर्म फॉर यूज इन अ डेवलपर कम्युनिटी, बट फॉर अ बिजनेस पर्सन दैट डजंट मीन एनीथिंग, और इट कुड मीन समथिंग एल्स। तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि रन टाइम का क्या मतलब है, बट यू नो वी फिगर आउट कि इनको समझ नहीं आई। भी मैं उनको बता दिया कि जी कि स्टेटस को हम इन फ्लाइट चेंज कर देंगे या ड्यूरिंग द कॉल। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप बात किससे करने जा रहे हैं। वेदर यू आर गोइंग टू टॉक टू अ डेवलपर और अ बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझ सकेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं समझेगा, ठीक है। अगर किसी बिजनेस पर्सन से आप बात करें वो नहीं समझेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मोस्टली ये होता है कि हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं ऑडियंस को, हमारी कौन सी है, आपका क्लाइंट किस लेवल का, उसकी टेक्निकल स्किल्स किस लेवल की हैं। तो आप जब बात करते हैं वो काइंड ऑफ समझ जाएगा, लेकिन वो कंफ्यूज रहेगा, वो बार बार रिपीट करेगा बातें। हो सकता है बाद में आपको ईमेल्स कर दे कि ये मुझे समझ नहीं आई। तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है जी एटीट्यूड और पैसिव लिसनिंग। एटीट्यूड का ये है कि many times people refuse to accept that they are part of the problem. Ego or attitude जो है वो within the team can lead you in the misunderstandings and friction. Many times it happens that someone challenges your work or highlights problems in your code that you write, and that can lead you to show your emotions rather than staying rational and composed. मतलब मेरे साथ भी होता था, मैं भी डेवलपर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब आपकी कोई प्रॉब्लम्स को कोई आइडेंटिफाई करता है या आपको बताता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ आपने लिखा है जो कि रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा, तो आपके इमोशंस सामने आ जाते हैं। मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है, मैंने तो उसको ठीक लिखा था लेकिन ये इस तरह क्यों कह रहा है। तो यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो उसको कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी क्लाइंट के साथ या इवन के अपने कोलीग्स के साथ भी बात कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा कंपोज्ड लेके चलना पड़ता है। Passive listening is simply hearing what the other person is saying but not really understanding what they are saying, in a sense that when
मतलब आप आपसे कोई बात कर रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, उसकी मोस्टली ये रीज़न ये होती है कि अम, आपको या तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं, या लैंग्वेज आपका बैरियर बन जाता है जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, कि लेट्स से कि वो कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू रन आउट ऑफ वर्ड्स, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने इसका क्या जवाब देना है, तो आप उसको में यस नो कर देते हैं। इवेंचुअली उसका आउटकम क्या होता है, उसका डाउन साइड क्या है, कि you would end up with a requirement that you imagine that it's right but it's not actually right। तो आप जब उसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं अपने कोड के अंदर या अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करना शुरू करते हैं, तो वहां पे इश्यूज आ जाते हैं कि पीपल डेवलपर्स टेंड टू अज्यूम थिंग्स मोस्ट टाइम्स व्हेन, जब हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं तो कुछ आपको समझ आ जाती हैं, अदर थिंग्स यू जस्ट अज्यूम दैट इट शुड बी लाइक दैट। आपके दिमाग में जो चलता है कि वो इस तरह होना चाहिए इसको, उस तरह आप उसको अज्यूम कर लेते हैं। मोस्ट टाइम्स ऐसा होता है, सब नहीं करते हैं लेकिन होता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें बेहतर ये होगा कि आप पैसिव लिसनिंग ना करें। पैसिव लिसनिंग एज इन जब आप सुन रहे हो तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुन रहे हो कि वो क्या कह रहे हैं, और उसको यू नो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क देम द क्वेश्चंस, बट if you are not listening them properly, you'll end up in a situation where you have you have something that is not deliverable. Next point here is almost I would say related to the point above, lack of interest। कोई आपसे बात कर रहा है, you're not paying attention, or you're daydreaming, looking somewhere else, or you're cracking your knuckles। ये सब चीजें जो है वो हमारे कल्चर में शायद उनको ना समझा जाए, लेकिन बाकी आप जो आपका क्लाइंट का कल्चर है, या आप किसी मतलब इफ यू आर वर्किंग रिमोटली विद समवन, उनके कल्चर में ये चीजें बहुत बुरी समझी जा सकती हैं और समझी जाती हैं। बेसिकली क्रैकिंग नकल्स, आप उनकी आंखों में नहीं देख रहे, यू लुकिंग समवेयर एल्स, या आप अटेंशन पे नहीं कर रहे, अपने हेड को मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें लैक ऑफ इंटरेस्ट को शो करती हैं। Right, so the next one is haste in responding, very important point। haste in responding, sometime ऐसा होता है कि आपको कोई मेल आई है और उस मेल के अंदर कोई आर्गुमेंट है, या किसी ने आपसे आपकी किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट किया कि ये ठीक नहीं है। अगर आप फौरन उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके इमोशन सामने आ जाएंगे रिप्लाई करने में। ईमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप नेवर हेस्ट इन रिस्पॉन्डिंग, ये आप अपनी जिंदगी का रूल बना लें कि ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करते वक्त अगर आपको लगे कि ये यू विल एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर क्लाइंट आपसे नाराज हो जाएगा, या कोई बात बुरी लगी आपको और आप उसको फौरन रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो इन मोस्ट केसेस आप अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगे, यू वोंट बी कंपोज्ड, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना ये चाहिए कि उस वक्त आप उसको छोड़ दें, आप सोच लें कि इसके बारे में मैं क्या रिप्लाई कर सकता हूँ। आफ्टर फ्यू आवर्स मे बी अ डे, आप जब उसको रिप्लाई करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा कोई एक रिस्पांस बना हुआ होगा आपके दिमाग के अंदर कि मैंने इसको क्या रिस्पांस करना। शुरू में फौरन मेल आई, फौरन जवाब दिया, बाद में आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें मैं कह सकता था लेकिन मैंने मिस आउट कर दी, मैंने नहीं की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईमेल्स के ऊपर, ईमेल कम्युनिकेशन में। A poorly written communication, again it's linked with the point above। आप जब भी email लिखें, make sure that if you are writing a long email, make sure you write that in the bullet points। आप उसके long essays ना लिखें, paragraphs ना लिखें। उसकी reason ये है कि when you write a long essay, there is a high chance that you will be repeating your sentences again and again। आप वही बात बार बार रिपीट कर रहे होंगे, एक ही पॉइंट को बार बार लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। कभी आप नोट कीजिएगा, अगर आपने लॉन्ग ईमेल लिखी है, अगर उसको रीड थ्रू करेंगे, स्किम थ्रू करें, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने ऑलरेडी ऊपर लिख दी हैं कहीं ना कहीं, फिर आप उनको आगे पीछे मूव करना शुरू। तो बेटर ये है कि आप अगर आपने लॉन्ग कोई डिटेल चीज बतानी है तो उनको बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करें इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग एसेस। बिकॉज व्हेन यू टाइप, इट्स एक्चुअली योर माइंड स्पीकिंग, but that's not necessary that your mind is speaking in a correct order। वो जो कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा आप उसको लिखना शुरू कर देंगे, बट व्हेन यू रीड इट, प्रूफ रीडिंग भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन जब आप उसको रीड करते हैं तो आपको पता लगता है कि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें रिपीट की हैं। तो बुलेट पॉइंट्स मैं हमेशा यूज करता हूँ और इट ऑलवेज वर्क फॉर मी। इसको हम बाद में
डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यू ऑल, अगर आप सब डेवलपर हैं तो आपको सबको पता है कि इसका क्या मतलब है। ऑलराइट, सो पिछली स्लाइड पे हमने देखा था कि ऑडियंस के बारे में पता होना जरूरी है। So addressing the problems, you need to know your audience. This is very important point. Knowing who you're going to talk to helps a lot in understanding what kind of communication style you're going to pick up. कुछ लोगों को ईमेल कम्युनिकेशन पसंद होती है, कुछ लोगों को फेस टू फेस मीटिंग्स और फोन पसंद होता है। आपने ये पहले अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम गोना टॉक टू। दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जिससे बात करने जा रहे हैं उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट है। आई एम मोर लाइक यू नो, मुझे ज्यादातर ये चीजें पसंद हैं कि मैंने किसी से कोई लंबी बात करनी है तो मैं फोन पे करूंगा उससे, ईमेल्स के ऊपर नहीं डिस्कस करूंगा। ईमेल के ऊपर उसको मैं स्टैम्प करूंगा कि ये हमने ये डिस्कस किया है एंड दिस इज अ रिटन प्रूफ कि हम यू गोना डू दिस वे। कुछ लोगों को ईमेल्स के ऊपर, जो मोस्टली जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं वो ईमेल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो ईमेल्स के ऊपर ज्यादा चलते हैं कि वो दे अवॉइड स्पीकिंग विद अदर पीपल। तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर नोइंग योर ऑडियंस, यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन दे आर फ्रॉम, और उनका कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, उनका फेवरेट मीडियम क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करने जा रहे हैं तो आप टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे उसमें, उसके साथ आपने टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, आप उसके साथ एक बेसिक इंग्लिश यूज करेंगे जिसमें उसको समझ आ जाए वो बात। अगर आप उसमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे, इन मोस्ट केसेस ही वुडंट अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं उससे। और कम्युनिकेशन स्टाइल अगेन जो उनका फेवरेट है, अगर वो फेस टू फेस को प्रेफर करते हैं आप उनसे फेस टू फेस बात करें। ईमेल्स पे अगर आपको लगता है कि वो पर्सन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, उससे मिलना चाहिए, मिल के बात होनी चाहिए, तो आप मिल लें उससे। Some people have like having most things on emails, other would have like to have it on face-to-face meeting or conference calls. जब आपकी कोई conflict हो जाता है, या you're trying to resolve a conflict, it's always better to talk, you have a face-to-face meeting or a conference call rather than writing that in email. उसका प्रॉब्लम क्या होता है ईमेल के ऊपर, जब आप प्रॉब्लम एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यू आर बेसिकली गिविंग इनफ टाइम टू अदर पर्सन टू कम बैक विद रिस्पॉन्स। आप अगर उस बंदे के साथ फोन पे बात करेंगे, आपको जो रिस्पांस फौरन मिलेगा वो ही रिस्पांस, मतलब आप उसने आपके साथ कमिटमेंट की है। लेकिन ईमेल के ऊपर जब आप उससे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आप उसको टाइम दे रहे हैं कि वो सोच लें, ठीक है। और सेकेंडली, टेक्स्ट मैसेजेस का प्रॉब्लम ये है कि यू समटाइम्स दैट वुड गिव अ टोटली डिफरेंट टोन डिपेंडिंग ऑन द रेसिपिएंट मूड एट दैट टाइम। तो आप उसको नहीं पता लगेगा, आपको नहीं पता कि उसका मूड क्या है, तो वो उसको ऐसे ही पढ़ेगा जैसे उसका मूड है उस वक्त। So in this situation, I think it's easier to jump into a call, have a chat with the person, resolve your conflicts, listen to them properly, and then provide them on your opinion. And after that, if it is required to send an email, just to have a written proof of your agreement, you can do that. And then हमने ये पिछली स्लाइड के ऊपर ये कवर किया था कि एक्टिव लिसनर होना चाहिए आप। यू शुड नो हाउ कि आपने दूसरे को कैसे लिसन करना है। To become a good communicator, it is important to be a good listener. It is important to practice your active listening skills. Pay close attention to what other people are saying to you and clarify ambiguities by rephrasing your own questions or their questions for greater understanding. एक पॉइंट मैं ऊपर इसमें जो मिस कर गया हूँ, आई गेस जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक, इसकी क्या एग्जांपल बनेगी, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने कोई चीज भेजी है और आपको लग रहा है कि आपने ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है यार एज पर डिजाइन, जो आपने रिक्वायरमेंट्स है उसकी बेस पे इसको बनाया हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये नो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, यू कुड से समथिंग लाइक व्हाट नीड्स टू बी चेंज इन टू मेक दिस सिचुएशन बेटर। आप बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन, जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं, आप उसको एक चांस दे रहे हैं कि they can explain their stuff.
और इसमें like you need to keep in this in your mind that when you're asking open-ended question, you're the other person not be judged. Like आप उसको जज नहीं कर रहे या उसको ऐसी फीलिंग ना जाए कि वो आप उसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको आर्टिकल्स और लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसको आप देख लें. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप किसी बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. मैं काफ़ी ये अपने अपने मेरे जो कोलीग्स हैं या मेरे जो कोवर्कर्स हैं या जो मेरी टीम में लोग हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ मेंशन करता हूँ. नेवर से अ स्ट्रेट नो. जब आप किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं, और स्ट्रेट नो जो है, अ ट्विस्टेड नो इज बेटर देन अ स्ट्रेट नो. आप ट्विस्टेड नो कह सकते हैं किसी और तरीके से, लेकिन स्ट्रेट नो कभी भी ना कहें कि नहीं ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक कुछ रिक्वायरमेंट थी उसकी बेस पे ये चीज़ बनाई है. ट्विस्टेड नो ये है कि आप उससे बात करते हुए कहें कि ठीक है आपकी प्रॉब्लम हमें समझ आ गई, वी नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव दिस चेंज वाज डन बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट ब्ला ब्ला ब्ला. तो इस तरह की चीज़ अब आप जब बोलते हैं, बेसिकली आप उसको टाइम दे रहे हैं और उसको एक मतलब चांस दे रहे हैं कि दे कैन एक्सप्लेन देयर स्टफ, बट यू हैव ऑलरेडी मेड योर पॉइंट कि ये आपने उसकी बेस पे बनाया. तो उसको आप प्रॉपरली जब उससे थोड़ी सी आप बात करने के बाद एक्सप्लेन करेंगे तो उनको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं. उसके बाद है आइडेंटिफाइंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल. हर इंसान के दो स्टाइल होते हैं. एक स्टाइल उसका नेचुरल होता है और एक उसका अडॉप्टेड स्टाइल होता है. आप जब अपनी वर्क प्लेस के ऊपर जो आपका स्टाइल है कम्युनिकेशन का, वो अडॉप्टेड स्टाइल होगा मोस्ट लाइकली. और नेचुरल स्टाइल वो है जो आपकी अपनी सोशल लाइफ के अंदर चलता है, जो आप अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, सॉरी, वो आपका नेचुरल स्टाइल होता है. तो आइडेंटिफाइंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल, मोस्ट पीपल यू नो आप जब आप काम कर रहे हैं, सम पीपल आर एक्सट्रीमली सीरियस ऑन देयर एट देयर वर्क प्लेस, to the point, not very social at work, but on the other way around in their social life and personal life. So you need to identify good qualities from your natural style and bring them in your adopted style at your workplace. Like I'm a very dominant person and a very social person in my personal life. I have served as a vice president for Pakistan Association of New Zealand, and I'm very active member of Labour Party, जो भी गवर्नमेंट में है यहाँ पे न्यूजीलैंड में. तो मैंने काफ़ी अरसे तक अपना जो अडॉप्टेड स्टाइल था अपनी जॉब के ऊपर, वो वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं, डैड एम स्केयर को छोड़ के. जब मैं पाकिस्तान से निकला तकरीबन 10-11 साल पहले, तो मैं बहुत क्वाइट था, स्पेशली इस वजह से क्योंकि मैं डिफरेंट कल्चर में आया, डिफरेंट लैंग्वेज बोलनी पड़ गई. तो ये सारी चीज़ें मिल के मेरा जो अडॉप्टेड स्टाइल था वो वेरी क्वाइट. लेकिन मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें लर्न करना शुरू की, एज आई ग्रू अप इन माय करियर, मैंने ये चीज़ मतलब नोटिस की कि मुझे अपने नेचुरल स्टाइल में से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने अडॉप्टेड स्टाइल के अंदर मूव करनी पड़ेंगी. एंड टू बी ऑनेस्ट इज हेल्पिंग मी अ लॉट इन माय वर्क. मेरी डोमिनेंट पर्सनालिटी जो है या मेरी सोशल पर्सनालिटी जो मेरी पर्सनल लाइफ का एक पार्ट था, उसको मैं वर्क प्लेस के अंदर जब लेके आया हूँ तो इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट. Next one here is choosing a medium. I think it's like I explained before. ऊपर वाले इनमें जब you understand who you're gonna talk to, उसके अंदर आपको ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि आपने किस किस्म का मीडियम उस पर्सन के साथ अवेलेबल करना है. आपके पास फेस टू फेस है, it's best for anything emotional, good or bad. And if you want to discuss some difficult situation, alignment oriented, उसमें आप face to face कर सकते हैं. Video chat not as good as face to face, but still auditory, still visual, especially for staying connected to someone in a different physical location. Phone for exchanging dialogues and complicated subjects we want to discuss, जो आपको email के ऊपर बहुत ज़्यादा time लग जाएगा explain करने में, you can do that on phone. emails को simple, fast और effective basic information exchange होनी चाहिए. जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स है, जो कुछ अपने क्लाइंट के साथ करें वो सारी फाइनलाइज हो जाएं, जस्ट अ स्टैम्प एन ईमेल कि आपके पास रिटन प्रूफ हो कि हमने ये बात की है. नेवर से नेवर. ये फेवरेट है मेरा. आपकी यहाँ पे जो नजर आ रहा है, आप में से जो डेवलपर है आपको पता है कि इसका क्या मतलब है, कि आपके पास जब कोई इश्यू आता है प्रोडक्शन के ऊपर स्पेशली,
उसको मोस्ट कॉमनली एक एक्सक्यूज मिलता है डेवलपर की तरफ से, मैं भी डेवलपर था और मैं भी देता था ये, इट वर्क्स ऑन माई मशीन, मेरे मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। डोंट से दैट, ये सबसे मेरे ख्याल में गंदा एक्सक्यूज है ये देना कि आपकी इट्स वर्किंग ऑन योर मशीन, बिकॉज योर मशीन इज नॉट द एनवायरनमेंट वेयर द एक्चुअल सिस्टम इज रनिंग ऑन। वो लाइफ के ऊपर चल रहा है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, उसमें डिफरेंट हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चल रहा हो, ठीक है, सीक्वल सर्वर डिफरेंट चल रहा हो। तो इस किस्म का एक्सक्यूज आप मे बी अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि इट्स वर्किंग ऑन माय मशीन, इट्स नॉट वर्किंग ऑन प्रोडक्शन, देयर इज सम प्रॉब्लम। बट क्लाइंट के साथ कभी भी इस तरह के वर्ड्स आप ना यूज किया करें कि इट्स वर्किंग फॉर माय, इट्स वर्किंग ऑन माय मशीन। आपके पास हो सकता है कुछ और इशू हो, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्लाइंट के साथ जब भी बात करें आप उसको एक सडन अपना रिस्पॉन्स ना दें, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ये, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। कि आपने अब अगर उसको देना है कोई रिस्पॉन्स, तो आप एक कंपोज्ड रिस्पॉन्स उसको दें। आप उससे मतलब चीज़ें गैदर करें, उससे एक्सप्लेनेशन मांगें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन उसको एक सडन जब आप रिस्पॉन्स देते हैं कि जी मेरे पास तो चल रहा है, आपके पास नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता, या आपके पास कोई इन्वायरमेंट का इशू है, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है इसको इस तरह एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल में। Right, so this is the last slide I've got here. आप में से कितने लोगों को डिस्क के बारे में पता है? राहिल, आपको डिस्क के बारे में पता है? ये बेसिकली एचआर के अंदर यूज होता है, ये प्रोफाइलिंग के लिए। जी बिल्कुल, मुझे इसका आइडिया है। बेसिकली ये बताता है कि कोई भी इंसान है ना, तो वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। तो इनमें से कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बट इट्स जस्ट के हर आदमी किस तरह का बिहेवियर रखता है, बाय नेचर वो किस तरह का है। एब्सोल्युटली, यही है, ये बेसिकली असेसमेंट टूल है, बिहेवियर असेसमेंट टूल। डिस्क इसको कहते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी जगहों पे भी यूज हो रहा है। मोर देन 50 मिलियन टाइम्स ये यूज हो चुका है ये मॉडल, और बहुत एक्यूरेट है। बहुत यहाँ पे मोस्ट कंपनीज यूज करती हैं, मैंने जहाँ जहाँ पे भी काम किया यहाँ पे यूज हुआ है ये बेसिकली क्या है कि आपके जो ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं उनकी बेस में आपकी असेसमेंट होती है कि आप किस तरफ लाई कर रहे हैं। नीचे डाउन देयर इज कॉन्शियंसेस, बेसिकली जितने भी डेवलपर्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, जो सी कैटेगरी है कॉन्शियसनेस, इसके अंदर लाई करते हैं। ये बेसिकली आपकी एक्यूरेसी, एनालिटिकल स्किल्स, इस तरह की जो चीजें हैं सारी आपकी वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। ऊपर डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंस एंड स्टेडीनेस है। अब होता क्या है कि ये जो सर्वे है, ये जो असेसमेंट टूल है, ये एचआर वाले यूज करते हैं आपके कोलीग्स के लिए, और उसके बेस पे ही वो बेसिकली आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि वो ईच को वर्कर इन दैट कंपनी वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, मतलब कि बेसिकली उनकी किस कैटेगरी में आते हैं। सम पीपल आर डोमिनेंट, अदर पीपल आर जस्ट दे स्टे स्टेडी। वो बहुत ज्यादा मतलब डोमिनेंट नहीं होते, मतलब वो एग्री करते हैं लोगों के साथ, रिस्पेक्ट करते हैं। वो डिफरेंट कैटेगरीज की जो है वो लोग होते हैं। इस टूल का मकसद जो एचआर यूज करता है, वो मकसद ये नहीं है कि आप इसकी बेस पे ये डिसाइड करें कि जो डोमिनेंट पर्सन है उसको हम लीडर बनाएंगे, या जो इन्फ्लुएंस रखता है उसको हम लीडर बनाएंगे। इसका ये मकसद नहीं होता। ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है ना इंसान का, वो सामने आ जाता है, और उसकी बेस पे अब इसमें मोस्टली होता ही है कि लोग उसको ऐसे फिल करते हैं असेसमेंट टूल को जिस तरह वो चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आए। ये बहुत गलत है। उसका उसकी रीजन ये है कि आपको एक तो खुद नहीं पता लगेगा कि ये आपको एक बड़ी डिटेल्ड आपको रिपोर्ट बना के देता है उसके एंड पे, जब आप वो टूल मतलब असेसमेंट अपनी कंप्लीट करते हैं, आपको बताता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ कि कौन कौन सी चीजें आप मूव कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस में, कौन सी चीजें आपकी वर्क प्लेस से मूव आउट होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें आपको पता लगती हैं। आई थिंक इट्स अ रियली गुड टूल। आप लोगों को अगर टाइम मिले इसको देखें, अगर आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो it really helps to understand the communication style of your co-workers,
आप ऑब्वियसली अपने क्लाइंट के ऊपर तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपने कोवर्कर्स के साथ काम करने में और उनके कम्युनिकेशन स्टाइल अंडरस्टैंड करने में, उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ये शेयर करते हैं आप एक दूसरे के साथ, आपको पता लग जाता है कि दिस पर्सन इज डोमिनेंट, इसके साथ बात करनी है तो मुझे कैसे करनी होगी। या यू नो समवन इज एनालिटिकल, जिसने जिसने डाटा को देख के या नंबर्स को देख के या फैक्ट्स को देख के बात करनी है, उसके साथ बात करने का क्या तरीका है, उसके सामने आप फैक्ट्स रखेंगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो इट्स आई थिंक इट्स रियली गुड टू। मैं तो पिछले जितना काम किया 4-5 कंपनियों में, सब में ये यूज हो रहा था। तो मेरी डिस्क प्रोफाइल बनी हुई है। जो रिपोर्ट बनती है वो काइंड ऑफ बहुत लंबी है ये, लेकिन इसमें इस तरह की चीज़ें आपको पता लगती हैं कि when communicating with Malik, be casual, informal with gestures and body language, outline individual task and responsibility in writing. तो ये डूज हैं मेरे साथ बात करने में, कि मेरे साथ आप सिंसियरली इंटरेस्ट शो करें, आप स्ट्रेट अवे मेरे सामने मुंह पे ना कोई चीज़ लगाएं। ये नीचे लिखा हुआ है कि से लिसन टू मी, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ बोलना मुझे बुरा लगेगा, कि मुझे कोई कहे लिसन टू मी, दिस इज हाउ वी गोना वर्क। ये मुझे स्ट्रेट इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और आपके को वर्कर्स के भी सामने आ जाते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आपने अपने को वर्कर्स के साथ बात कैसे करनी है, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। So that's pretty much about it. I think that's all I've got to share with you guys. It's बहुत straightforward, 30 minutes, 40 minutes में I think हमने cover कर लिया है. If you have any questions, you feel free to ask me. Otherwise, if you want to share your feedback or you want to input something, you can do that as well. For the larger interest of the audience, अगर आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो डिस्क ट्रेड्स हैं, if we are encountering issues with this model within in our own organization, तो हम उसको कैसे मैनेज करें? For example, if a group of employees or an individual is falling into a D category, which is dominance category, तो is there are strategies or theories which could help us, एक introvert को हम मतलब we can bring out an introvert from that introvertness to the extrovertness, क्योंकि आपको पता है कि जो practical issues हैं organizations में वो ये हैं कि एक टीम में अगर 2 लोग बहुत परफॉर्मर हैं, enthusiastic हैं, और एक बंदा जो है वो टेक्निकली तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन on a personality trait he's very very shy, very reserved and very introvert, and it starts lacking the overall performance of the team. So I'm just trying to understand, since you have an experience on this, कि क्या strategies और क्या theories आप suggest करते हैं which is very simple and practical into our environment, कि हम इस किस्म के जो issues हैं उनको address कर सकें. Yeah, I think it's a good question. I think you have asked 2 questions actually. आपका पहला क्वेश्चन ये था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा डोमिनेंट है और कोई इंट्रोवर्ट है, तो उसके साथ बात करने का कौन सा स्टाइल, हमें कैसे पता लगेगा उसके साथ बात कैसे करनी है। और सेकेंडली, जो एक बंदा आपकी कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंट्रोवर्ट है, इवन दो ही इज अ गुड डेवलपर बट ही इज नॉट गुड विद द कम्युनिकेशन, तो उसके साथ बात करने में या उसको ऊपर लाने में क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आई थिंक वन बाय वन आई विल गो थ्रू दीज what you call that one, different parameters of disk, and then we will talk about that one as well. So dominance इसमें जो है वो basically aggressive personalities होती हैं, aggressive होती हैं individuals जो problems को they aggressively deal with the problems they encounter. Someone with high 50 or 100 जो है वो डी स्कोर में आते हैं, डोमिनेंट होते हैं, एंड वो प्रॉब्लम्स को अटैक करते हैं। और अगर आपकी 50 से नीचे नीचे नंबर है, स्कोर है, तो वो आपकी डोमिनेंस कम है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो उनकी भी डोमिनेंस होती है, लेकिन उनके पॉइंट्स बहुत कम होते हैं उसमें। अब ये है कि इसके अंदर जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, जब आप उसके साथ बात कर रहे हैं तो आपको अपनी डोमिनेंस सामने रखनी पड़ेगी। इवन दो अ पर्सन कुड बी अ इंट्रोवर्ट बट स्टिल ही हैज गॉट सम काइंड ऑफ डोमिनेंस इन हिज पर्सनालिटी। तो जब आप इन चीज़ों को, ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डिस्क प्रोफाइलिंग अपनी करवा ली, इंट्रोवर्ट ने भी करवा ली, एक्सट्रोवर्ट ने भी करवा ली, डोमिनेंट पर्सन ने भी करवा ली,
सबने करवा ली, सबको पता लग गया कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। यू वुड कम टू नो कि जब आपने एक डोमिनेंट पर्सन के साथ बात करनी है तो आपकी पेस क्या होनी चाहिए, आपकी व्हाट यू कॉल दैट वन, आपकी मतलब कि जो एक टोन है उस बंदे के साथ बात करने में वो एक डोमिनेंट होनी चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट पर्सन वुड ओनली अंडरस्टैंड अ डोमिनेंट टोन। इवन दो कि कुछ लोगों को वो हिट कर जाती है कि आप डोमिनेंट पर्सन के साथ जब आप उसी की टोन में बात करते हैं तो दैट विल फायर बैक इन सम केसेस, बट इन मोस्ट केसेस इंट्रोवर्ट पर्सन को जब वर्क प्लेस के अंदर जाते हैं, आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जो इंट्रोवर्ट वर्क प्लेस पे होगा वो बाहर नहीं होगा, घर के अंदर नहीं होगा, वो इन मोस्ट केसेस वो सिर्फ एक उसकी अडॉप्टेड स्टाइल होता है वर्क प्लेस के अंदर, जिसको उसने मतलब कि वो चला रहा है अपने अडॉप्टेड स्टाइल को वर्क प्लेस में। आई थिंक इट्स एक तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ जाती है कि जब आपको पता है कि एक बंदा अच्छा डेवलपर है, कि इज गुड एट दैट, आप उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं कि हाउ ही कैन बी गुड विद हिज कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। और सेकेंडली that person who is introvert who's working in your company is good with his code, definitely अगर वो अपने काम के साथ अच्छा है तो he will be really confident talking to other people, so he should expose his inner dominance in outside। जब लोगों के साथ बात करें तो वो उन चीज़ों को अपने सामने लाए, ताकि वो जब किसी के साथ बात करो तो उसको मतलब he is on the same pace as other person is। I hope it answers your question. Yes, to some extent. I know that we are currently in a session where a lot of people are listening to us, so I don't want it to actually waste most of their time. लेकिन ये कि मैं मतलब अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं quickly और frankly, because I believe कि most of the people are either from the employee background they are attending, and few people like Rahil and myself, we are from the employer side. So हमें एक चैलेंज है, ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है, एंड दिस चैलेंज इज नॉट ओनली इन दिस environment. I've seen this internationally as well, but there we have, because these guys have discovered and invented these models, so they are very good at using these models. But into our environment, we usually face a very practical challenge कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो रिजर्व्स लोग होते हैं, वो दे परफॉर्म वेल, बट दे लेक on communication, they lack on presentation, they lack to actually express themselves. और आपकी बात शायद मतलब आपके तजुर्बे में, मेरे तजुर्बे में ये है कि इंट्रोवर्ट मैंने यूजुअली देखा है कि दे आर इंट्रोवर्ट अक्रॉस देयर लाइफस्टाइल। तो उसका जो एक नुकसान होता है वो ये होता है कि even then they are very good contributors, but they are not very good reward takers. So Yeah. मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि अगर कोई सिंपल और ऐसी थ्योरीज हैं, जो ऐसे मेथड्स हैं, कोई टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्क एक्टिविटीज हैं which could actually assist us to bring those guys into the mainstream. क्योंकि मेरे ख्याल में जो इशू है वो ये है कि वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बन पाते। आई होप कि राहिल वुड बी एग्रीइंग विद मी, प्रॉब्ली वो भी इसी किस्म के प्रॉब्लम से फेस करते होंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं सर्टेनली it requires probably a lot of other discussion as well, so I'm fine with the response. Yeah, I think I'll quickly try to cover it. I think जो आपका पॉइंट है वो मुझे समझ आ गया। मैं भी kind of introvert personality हूँ, लेकिन up to some extent it's kind of a complex, like sometime I'm introvert, sometime I'm not easy to talk to new people. लेकिन आपका जो पॉइंट है कि अगर एक इंट्रोवर्ट पर्सन आपकी कंपनी में काम कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, आप उसको सामने बाकी लोगों के सामने या अपने सोशल जो आपकी वर्क प्लेस के ऊपर एक सोशल लाइफ भी चल रही होती है उसके अंदर उसको कैसे ब्रिंग करेंगे। एक तो पॉइंट ये है कि अगर वो इंट्रोवर्ट है, दैट्स बाय नेचर, आप उसको कभी भी नहीं चेंज कर पाएंगे। इवन दो यू कैन इम्प्रूव थिंग्स, बट यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज द होल पर्सनैलिटी फॉर योर ओन वर्क प्लेस, ये कभी भी नहीं हो सकेगा। बट what you can do is you can mold little bit of that personality, उसको मोल्ड करके अपनी कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है, यू शुड यूज दैट पर्सन
इन अ सिचुएशन जहाँ पे उस तरह का बंदा चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब कि अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है and he's not good with the communication, he should not be used for the communication at all. I think he would be okay as well कि उसको communication के लिए use ही ना किया जाए, कि clients के साथ बात करने के लिए या बाकी किसी चीज़ के लिए उसको use ना किया जाए। Secondly, social जो आपकी gatherings होती हैं आपकी कंपनी के अंदर, उसमें नहीं अगर कोई involve हो रहा, most people don't do that. अगर वो introvert है, he wouldn't do that. But अब आपको खुद से अप्रोच करना पड़ता है इंट्रोवर्ट लोगों को। वो कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, कभी भी आपके साथ खुद से मिंगल नहीं करेंगे जब तक आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे। यू मेक देम फील इजी कि वो आपकी मतलब उसके जो एक होता है आपकी फ्रिक्वेंसी के अंदर आ जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं। अब राहिल को एक याद होगा मेरे साथ जो बंदा बैठता था, आई थिंक देयर इज अनदर पर्सन फ्रॉम डेटिंग स्क्वायर एज वेल, अमर, he is an introvert person, and the person who used to sit next to me in Durham Square, he was introvert, extremely introvert, he's still introvert। काशिफ की बात कर रहा हूँ राहिल में। अब उस बंदे का प्रॉब्लम ये है कि ही इज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट। ही अगर आप उसको एक जगह पे बिठा देंगे, ही वुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड फॉर होल होल नाइट। अगर आप पूरी रात बैठे रहेंगे वो कभी भी बात नहीं करेगा। बट ही इज रियली इजी विद मी। मेरे साथ वो बात करते हुए बहुत ईजी था, क्योंकि मेरा जो टाइम गुजरा है वहां पे, आई वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट विद एवरीवन। मैं हर किसी के साथ एक्सट्रीमली मतलब उसके कंफर्ट लेवल पे ऊपर बात जाके करता था, जिस लेवल उसकी पर्सनालिटी है उसी तरह उससे जाके मैं बात करूंगा। तो उससे क्या होता है कि आप जब इस तरह के लोगों से बात करते हैं जिनकी कम्युनिकेशन थोड़े से वो क्वाइट हैं, वो साइड पे बैठे रहते हैं कॉर्नर में बैठ के, आपको खुद से उनको अप्रोच करना पड़ता है। यू हैव टू मेक देम फील ईजी in that environment, and that's when they start showing up their inner side। उनकी अपनी जो अंदर वाली चीजें वो बाहर आने शुरू हो जाती हैं। जहां तक डिस्क की बात है, even though disk is being used widely all over the world, हर जगह पे इसको डिस्क को यूज किया जा रहा है, बट स्टिल जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, तो दैट्स वेयर जो एचआर के लोग हैं या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस पीपल हैं, दे डोंट डू मच अबाउट दैट। इवन दो कि मेरी पर्सनालिटी मेरे कुलीग को पता चल गई है, डिस्क प्रोफाइलिंग हो गई है, मेरी पर्सनालिटी की उसकी पूरी रिपोर्ट इसके पास चली गई है, बट ही वुडंट बॉदर टू रीड दैट रिपोर्ट। मैं नहीं बॉदर करूंगा कि मैं इतनी लंबी डिस्क प्रोफाइलिंग किसी की पढ़ूं। आई थिंक इसके ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपने कुलीग्स के साथ जब आप ये चीजें आप शेयर करते हैं, तो आप उनको एक समरी में बता सकते हैं कि जो दूसरा बंदा आपका कुलीग है उसकी पर्सनालिटी इस तरह की है, आप उसके साथ इस तरह बात करें, या व्हेन यू अप्रोचिंग हिम इस किस्म की चीजें आप उसके साथ कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ ह्यूज रिपोर्ट आप किसी के साथ शेयर करेंगे, ही वुड नॉट बॉदर टू रीड अबाउट इट अनलेस कि वो आपका पार्टनर हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो। तो आई थिंक इस सेशन के लिए तो इतना टाइम नहीं है कि इसको फर्दर डिस्कस कर सकें, बट आई थिंक यू मेड अ रियली गुड पॉइंट हियर।